अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं बात करूंगा पार्किंसन डिजीज़ पर। पार्किंसन डिजीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव समझना ये है कि ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो मेनली मूवमेंट को इफ़ेक्ट करता है, जिसमें पेशेंट की मोटर और नॉन मोटर दोनों फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर इसकी बात करें कि पार्किंसन डिजीज़ क्या है, पार्किंसन डिजीज़ एक क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव मूवमेंट डिसऑर्डर है जो डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स के डैमेज होने की वजह से होता है, स्पेशली सबस्टेंशिया नाइग्रा एरिया में। इस डिजीज में ब्रेन का सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्ट में डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। जब डोपामाइन कम हो जाता है तो नर्व सिग्नल्स मसल तक स्मूथली नहीं पहुंच पाता, जिससे ट्रेमर्स, रिजिडिटी या ब्रेडिकाइनेसिया मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसमें हमारा जो कॉग्निटिव और बिहेवियर है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो सेंसरी, स्लीप और इमोशनल प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह की कंडीशन में पेशेंट बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। Movement in the human body is modulated by the extrapyramidal system, which includes the substantia nigra, subthalamic nucleus, basal ganglia, and thalamus. The extrapyramidal system can either promote or inhibit movement. Let's take a closer look at the key extrapyramidal structures involved in Parkinson's disease. The basal ganglia are two large groups of nerve cells located near the base of the brain, which consist of the caudate, putamen, and globus pallidus. Together, the caudate and putamen form the corpus striatum, or striatum. The substantia nigra is a tiny structure located deep within the brain. There are actually two structures, but they are typically referred to as a single entity in the medical literature. Normal movement depends on adequate levels of the neurotransmitter dopamine, produced by cells in the darkly pigmented zona compacta of the substantia nigra, and delivered to the striatum and other parts of the brain. Because this motor pathway involves the substantia nigra and the striatum, it is known as the nigrostriatal pathway. The synthesis of dopamine begins with the amino acid tyrosine. Within the neurons of the substantia nigra, tyrosine is converted into levodopa through the action of the enzyme tyrosine hydroxylase. Levodopa is converted into dopamine through the action of the enzyme dopa decarboxylase. When signaled by an impulse traveling down the axon to the synapse, dopamine is released into the synaptic cleft. Some of the released dopamine binds to dopamine receptors on the receiving neuron, triggering a signal that is relayed through neurons to the motor center in the cerebral cortex of the brain. This signal eventually travels through the spinal cord to modify activity in muscle cells. Free-floating dopamine in the synaptic gap may be taken back into the neuron that released it and stored for future use in a process called reuptake. It may also be converted into other substances through the action of the enzymes monoamine oxidase B, or MAOB, and catechol-O-methyltransferase, or COMT. Within the striatum, there is a delicate balance between dopamine and acetylcholine, another important neurotransmitter. In patients with Parkinson's disease, there is massive degeneration of dopamine-producing cells in the substantia nigra. The dopamine supply to the striatum is gradually reduced. This disrupts the balance between dopamine and acetylcholine, resulting in a relative excess of acetylcholine. When 60% to 80% of dopamine-producing cells in the substantia nigra are damaged, the extrapyramidal system loses the ability to effectively promote movement, and the motor symptoms of Parkinson's disease, such as resting tremor, rigidity, bradykinesia, and postural instability, begin to appear. Therefore, a primary objective of pharmacologic therapy of Parkinson's disease is to increase dopamine levels in the brain. ये एक पूरी रिसर्च दी हुई है कि कितने परसेंट लोग जो है इफेक्ट होते हैं। अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो डोपामाइन न्यूरॉन डी जनरेट हो जाते हैं,
डोपामाइन लेवल डिक्रीज होता है, बेसल गैंग्लिया का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस होता है डोपामाइन और एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर के बीच, मोटर सिम्पटम ग्रेजुअल आहिस्ता-आहिस्ता से अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। मोटर सिम्पटम कौन-कौन से होते हैं? रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रेमर्स, पोस्चरल इनस्टेबिलिटी। रिजिडिटी, बॉडी में बहुत ज़्यादा सख्ती आ जाती है, ब्रेडिकाइनेसिया, स्लो मूवमेंट हो जाती है, ट्रेमर्स, हाथ काँपना स्टार्ट हो जाते हैं। पोस्चरल इनस्टेबिलिटी में आप देखते हैं कि पेशेंट का जो पोस्चर होता है वो स्टूप पोस्चर हो जाता है, नेक फॉरवर्ड मूव हो जाती है और फिर जो है वो पेशेंट स्लो जो है उसके स्टेप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए इसकी रिहैबिलिटेशन फर्स्ट डे से करना स्टार्ट हमें करनी चाहिए। रिजिडिटी इसके 2 टाइप्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लीड पाइप रिजिडिटी और कॉक व्हील रिजिडिटी। शुरू-शुरू में जब पेशेंट को रिजिडिटी स्टार्ट होती है तो वो पेशेंट खुद भी नहीं समझ पा रहा होता है कि क्यों ये रिजिडिटी स्टार्ट हुई है, लेकिन उसके नेक, शोल्डर और जो फेस के मसल्स हैं वो काफ़ी सख्त होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो आगे की तरफ फॉरवर्ड जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड पोस्चर वो होना स्टार्ट हो जाता है। प्राइमरी पार्किंसन डिजीज़ आइडियोपैथिक है, कॉज़ जो है इसकी अननोन है। और ट्रेमर्स की बात करें तो पेशेंट के आप हाथ देखेंगे बहुत ज़्यादा शिवरिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक साइन है जिसको हम पिन रोलिंग साइन कहते हैं। इसको मैं वीडियो में आपको बताऊँगा कि किसी को अगर पार्किंसन डिज़ीज़ है तो आप असेस कर सकते हैं। अ फीचर ऑफ ट्रेमर इज़ पिन रोलिंग इज़ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ द इंडेक्स फिंगर ऑफ द हैंड टू गेट इनटू कॉन्टैक्ट विद द थंब एंड परफॉर्म टुगेदर अ सर्कुलर मूवमेंट। ये देखिए स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है कि किस तरीके से आप पार्किंसन डिजीज का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी बैलेंस मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम हो पेशेंट को स्पेशली टर्निंग या डायरेक्शन चेंज करते वक्त तो आप समझ जाएं कि इनको पार्किंसन डिजीज है। इसमें फॉल का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पेशेंट के जो स्टेप्स हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं जिस पर हमें एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वर्क करना होता है और हमें चॉकिंग करनी होती है प्रॉपर तरीके से ताकि पेशेंट के स्टेप को हम शॉर्ट स्टेप को एक नॉर्मल की तरफ लेकर आने की कोशिश करें। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि ये पार्किंसन डिजीज़ में किस तरीके से पोस्चर हो जाता है। इसको हम स्टूप पोस्चर कहते हैं जिसमें नेक जो है फॉरवर्ड होता है, हैंड देखें दोनों एल्बो को फ्लेक्स किया हुआ है और नी भी स्लाइटली फ्लेक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से स्टेप प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं और गेट पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सेकेंडरी मोटर सिम्पटम्स में फ्रीजिंग ऑफ गेट, माइक्रोफेजिया, मास्क फेस, स्पीच प्रॉब्लम ये होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें क्या होता है माइक्रोग्राफिया मीन्स कि छोटी हैंड राइटिंग हो जाना, छोटे-छोटे अल्फाज लिखना, मास्क फेस एक्सप्रेशन फेस के डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पीच प्रॉब्लम, सॉफ्ट वॉइस या इसको हम मोनोटोन कह सकते हैं। This gait is the gait that is a hypokinetic gait. The prototype is Parkinson's or Parkinsonian type of gait in which the patient will have a posture which will be stooped over, leaning forward, and then will have difficulty as far as initiating gait. When the gait is initiated, there are small steps. Oftentimes there's a tremor associated with this, and as the gait progresses, there may be a picking up of speed or what's called a fenestrated gait. And then in turning, instead of having the normal turning, the patient will turn en bloc, which means they'll turn almost as a statue moving around. And then again having difficulty starting in the marche petit pas. ये पूरा एक केस स्टडी आप देख सकते हैं। केस स्टडी दिया हुआ है कि अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास तो उसमें आप मोटर और नॉन मोटर सिम्पटम्स आप देखते हैं। नॉन मोटर सिम्पटम्स में आप देखते हैं कि पेशेंट को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन जिसमें कॉन्स्टिपेशन, लो बीपी हो जाना, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जिसमें मेमोरीज के कुछ इश्यूज होते हैं। तो फिर आप उसके असेसमेंट करते हैं जिसमें सेंसरी मोटर मोटर सिस्टम में आप क्या करेंगे, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, पोस्चर, मसल परफॉर्मेंस, पोस्चर, गेट,
ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। साइड में आप देख सकते हैं कि अर्ली साइन्स हैं पार्किंसन डिज़ीज़ के, कि कौन-कौन से साइन होते हैं। स्लो मूवमेंट हो जाती है, मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ़ हो जाते हैं और उसके अलावा जो है आप जो है वो बैलेंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं जिस पर हमें वर्क करना होता है। पेशेंट की जब हम असेसमेंट करते हैं तो हिस्ट्री के साथ-साथ और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें देखनी होती हैं जिसमें न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन, मोटर फंक्शन टेस्ट, बैलेंस एंड गैट एनालिसिस, क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से हम उनसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि आप जो क्वालिटी ऑफ लाइफ गुज़ार रहे हैं उसमें जो है कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं। फिज़ियोथेरेपी के गोल्स की अगर हम बात करें तो फिज़ियोथेरेपी के गोल्स में सबसे पहले आप सिम्पटम्स देखेंगे पेशेंट के कि आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट को रिजिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी स्पीच में प्रॉब्लम हो जाता है, उसके अलावा जॉइंट जो है फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं, उसकी हमें स्ट्रेंथ पे वर्क करना होता है, बैलेंस ट्रेनिंग करवानी होती है। एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट आपकी टोटल रिहैबिलिटेशन फ़ोकस इसी पर होना चाहिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे पेशेंट को सिटअप्स भी करवाएँगे, साइड वॉकिंग करवाएँगे, वन लेग स्टैंडिंग करवाएँगे, उसके अलावा क्योंकि स्टूप पोस्चर है तो उसके अपोज़िट आप मूवमेंट करवाएँगे। आप साइड में देखें कि सेल्फ आप घर पर किस तरीके से एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये सारी फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज़ेज़ आप घर पर परफ़ॉर्म कर सकते हैं ईज़िली। पार्किंसन डिज़ीज़ जब भी हो तो आप इसको बिल्कुल ईज़ी ना लें, फ़ौरन से अपने न्यूरो फिज़िशियन से कंसल्ट करें, अगर आपको ये सारे सिम्पटम्स ज़ाहिर होते हैं तो। और इसमें फ़ौरन फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए, मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि ये डिज़ीज़ और ज़्यादा बढ़ती जाती है। इसको रोकने के लिए मेडिसिन प्लस फिज़ियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसके साथ-साथ अगर आपको स्पीच का प्रॉब्लम है तो आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपके रोज़मर्रा जैसे राइटिंग, ग्रैस्पिंग, आप खाना खाते हैं, उसके अलावा ब्रशिंग करते हैं, इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है एज़ अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का। वॉशरूम में रिस्क ऑफ फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बैलेंस आउट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो वॉशरूम की सेटिंग है, वो ऐसे ही करवानी चाहिए कि आप इज़िली कमोड से उठ सकें, वापस बैठ सकें, इज़िली कम यूज़ कर सकें और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। ऐसे फिज़ियोथेरेपिस्ट जो मेरे जूनियर्स हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं काम, उनके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको मैं बताना चाहूँगा कि वो वेट शिफ्टिंग एक्सरसाइज़ेज़ पे अपना वर्क स्टार्ट करें, टैंडम वॉकिंग करवाएँ, साइड स्टेपिंग करवाएँ, ऑब्स्टेसिल क्रॉसिंग ट्रेनिंग करवाएँ और फिर सपोर्टिंग ऐड का यूज़ करवाएँ, जिसमें वॉकिंग स्टिक, कैन, कॉर्ड्स और उस कॉर्ड कैन, इसके अलावा वॉकर और स्पेशली यूटेंसिल एंड ड्रेसिंग एड्स फॉर डेली टास्क ये पेशेंट्स को दीजिए कि उनको बताएं कि उनको कपड़े कैसे पहनने हैं, ब्रश कौन सा यूज़ करना है, कॉम्ब अगर इस्तेमाल करना है तो किस तरीके का इस्तेमाल करना है, उसकी स्पीच थेरेपी पे आप वर्क करें। आप देखें कौन-कौन से आप एड्स यूज़ कर सकते हैं। इस पिक्चर में सब कुछ दिखाया जा रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।